14 दलाई लामा जी के। और ये हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि जुलाई में दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन मनाया गया है। हम समस्त ITI की तरफ से जो इनके साथ आए हैं कैलाश चंद्र जी के साथ सेटलमेंट ऑफिसर श्री जीलन यांग जी, उनका भी, और सेक्रेटरी श्री तेंजिन दावा जी, उनका भी मैं यहाँ पर भव्य स्वागत करता हूँ। और उनके साथ आए उनकी पूरी टीम, सेटलमेंट ऑफिसर के साथ आए उनकी पूरी टीम, सेक्रेटरी सर और जितने भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति मंच पर आसीन हैं, उन सब का मैं ITI कोटा की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सर। और कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्योंकि नाम में स्पष्ट ना कर पाऊँ, तो उसके लिए भी खेद प्रकट है। और अब मैं आग्रह करूंगा सेक्रेटरी सेटलमेंट ऑफिसर सर के जो सेक्रेटरी हैं श्री तेंजिन दावा जी के वो आए और आगे का कार्यक्रम प्रेषित करें। जोरदार तालियां सेक्रेटरी सर के लिए, श्री तेंजिन दावा। Good morning everyone. Respected Rajiv Batra, instructor, esteemed faculty members and dear students, on behalf of the Ponta Chusum Welfare Settlement Office, I extend a warm welcome to all of you gathered here for today's special talk session. Before I proceed, allow me to share a brief note about today's event. This year, we are observing the Year of Compassion, a special initiative that is a part of the year-long celebration for marking the 90th birthday anniversary of His Holiness the 14th Dalai Lama. Through this program, we aim to convey and embody His Holiness the Dalai Lama core message of love, compassion and warm-heartedness, universal values that transcends boundaries of caste, religion and nationality. On this note, I would like to share a message from His Holiness the Dalai Lama, one that he often shares whenever he meets people. Be kind whenever possible. It is always possible. Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. So, now, without further ado, it is my great pleasure to introduce today's distinguished speaker, Shri Kailash Chandra Bhuta ji, who has been serving as the official Hindi translator for His Holiness the 14th Dalai Lama since 2012. In addition to this, he also translated for numerous other highly revered Tibetan and other spiritual masters. He completed his undergraduate studies at Dr. B.R. Ambedkar University, Accra in 2014, followed by a Master of Arts from the same university in 2017. In addition, he holds several academic degrees, including MA in Madhyamika Buddhist Philosophy, Master of Arts in Buddhist Studies from the University of Delhi in 2021, Remain Lobe, which means Great Master of Buddhist Philosophy in 2022. He is currently pursuing a PhD at the University of Delhi alongside Rime Geshe degree in Tibetan Buddhism and Philosophy from the Institute of Buddhist Dialects, a prestigious Tibetan monastic qualification which is a PhD degree, typically requiring 18 to 20 years of rigorous study. He has published several books including Dhyan Sadhana Ke Saat Bindu, Vishwas Se Ek Avan, and many others. He actively participates in international academic and spiritual forums such as the International Conference on World Peace in Seoul, South Korea, and Future Buddhism in India in Bangkok, Thailand. In addition to this, he teaches
Buddhist philosophy to university students through the Gurukul program organized by the FRU Delhi. With that, I would like to invite Shri Kailash Chandra Buddha Ji to deliver a talk on today's topic, social, emotional and ethical learning. Please welcome Sir. नमस्कार। फाइनली हम लोग सफल हुए और ये जो संस्थान है टेक्नोलॉजी का संस्थान, इसमें आकर के हम लोग फंस गए तो इससे सिद्ध होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के कितने गुलाम हैं कि उसके वजह से थोड़ा भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आज के समय में, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी आ जाए तो खैर ये जस्ट ऐसे ही। और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले इस ITI संस्थान के सभी पदाधिकारीगण का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। नाम तो मैं नहीं पहचानता, नाम तो नहीं जानता, लेकिन आप सभी को मेरा नमस्कार। और इसके साथ साथ जो हमारे छात्र हैं उन सभी को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग करता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान दे करके सुनिए। आप लोगों से मुझे दो चीज़ें चाहिए, आप सभी लोगों से मुझे दो चीज़ें चाहिए। दोगे क्या? हाँ या ना? पहली चीज़ क्या है कि आपकी जो आई कांटेक्ट है मुझे देखना है, आंखें जो है स्क्रीन की तरफ हों, ठीक है? दूसरा, मन भी यहीं रहे इसी क्लास में। तो क्या चीज़ चाहिए हमें? किसी भी क्लास में दो चीज़ें हमेशा टीचर के पास जानी चाहिए स्टूडेंट की, नज़र और मन। तो इसलिए अभी जब तक हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे तब तक आप लोग इधर मेरी तरफ देखते रहें, तब अच्छा एक संवाद बनेगा, एक डायलॉग बनेगा। नहीं तो मैं कुछ भाषण देता जाऊँगा, आप लोग बहुत बढ़िया करके चले जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी क्लास में आप जब यहाँ ITI जब आपके टीचर्स लोग पढ़ाते हैं उस समय भी हमेशा आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सब की तरफ बोलूँगा और देखता भी रहूँगा, और हो सकता है किसी से मैं पूछूँगा भी कि मैंने क्या पूछा है, बताया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज यहाँ पर हम लोगों का आने का मकसद कोई भाषण देना नहीं है, और ना ही आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ परम पावन दलाई लामा के फ़ोटोज़ लगे हैं, तिब्बत के बारे में कुछ पोस्टर्स लगे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने दलाई लामा जी के बारे में सुना होगा, नाम सुना होगा, फ़ोटो के माध्यम से देखा होगा, और आपके वो हिमाचल में रहते हैं। थोड़ा सा परम पावन जी के विषय पर जाने से पहले परम पावन दलाई लामा जी की जीवनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उनके लाइफ के बारे में। दलाई लामा जी का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे, कोई रईस परिवार से नहीं थे, अमीर नहीं थे। जैसे हम सभी लोग होते हैं, गाय भैंस भेड़ पालन करते, उनके पिता भी उसी प्रकार से करते थे। फिर उसके 1935 के बाद 2 साल की जब वो उम्र में थे तो उनको पढ़ने के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा लाया गया। तो ल्हासा जो भी दलाई लामा होते हैं उनको पढ़ने का एक स्थान होता है, उनकी गद्दी होती है। फिर विधि विधान से उनको दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई, सभी लोगों ने स्वीकार किया, अध्ययन किया जैसे हम सभी लोग करते हैं। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की उम्र में वो तिब्बत के राष्ट्रपति बने और 60 लाख तिब्बती भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली। कितनी उम्र में? यहाँ कोई है 16 वर्ष का? उससे ज़्यादा होंगे। 16 वर्ष की उम्र में 60 लाख तिब्बती लोगों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, अपने कंधे पर ली। वो माता पिता के रूप में व्यवहार किया। भाई राष्ट्र का राष्ट्रपति अगर होगा तो वो क्या करेगा कि सभी लोगों की जिम्मेदारी रखेगा, सबका ध्यान रखेगा। 16 वर्ष की उम्र में। फिर 16 वर्ष के बाद 8 साल बाद 24 वर्ष के जब वो थे तब तिब्बत से भारत में मजबूरी बस आना पड़ा।
चीन ने तिब्बत पे अटैक कर दिया तो उसके साथ साथ दलाई लामा जी और उनके लगभग 80,000 लोग भारत में आए। तो भारत सरकार ने फिर सबसे पहले जब आए थे तो अरुणाचल में आए, अरुणाचल के बाद फिर सेटलमेंट मसूरी में दिया गया। मसूरी के बाद फिर दलाई लामा जी ने अपना हेड क्वार्टर धर्मशाला हिमाचल में बनाया। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विश्व की शख्सियत जो कि टॉप 10 में कहा जा सकता है कि उनको गिना जाता है, वो आपके घर में है, आपके घर में, हिमाचल में, दूर नहीं है यहाँ से। और ये तिब्बती भाई बहन भी आपके गांव में रहते हैं। इस प्रकार के हमारे तिब्बती भाई बहन अलग अलग जगह पर, भारत में अलग अलग जगह पर अपनी व्यवस्था के साथ भारत सरकार, स्टेट जो राज्य सरकार की मदद से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे दलाई लामा जी के बारे में हम लोगों को भी जानना जरूरी है एज ए इंडियन। और भारत सरकार ने 1959 में परम पावन जी को भारत का आधिकारिक एक गेस्ट के रूप में आना है। और तो परम पावन जी कहते हैं कि मैं सबसे अधिक समय तक रहने वाला गेस्ट हूँ, अतिथि हूँ। गेस्ट कोई आता है 1 साल 1 महीना, उसके बाद चला जाता है, लेकिन दलाई लामा जी पिछले 60-70 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। अब वो अपने आप को भारत का पुत्र कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ इंडिया। तो सन ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि जो मैंने सीखा है वो भारत से सीखा। जो भी मैंने पढ़ाई की है तिब्बत में, जो पढ़ाया जाता है वो भारत से गई हुई परंपरा है, बौद्ध दर्शन की परंपरा है, उसको मैंने सीखा है। और जो आज मेरा जो शरीर है वो भारत के भोजन से बना हुआ है। तो इस आधार पर मैं भारत का पुत्र हूँ। तो दलाई लामा जी हमारे भी उतने ही हैं जितने हमारे तिब्बती भाई बहनों के हैं। दलाई लामा जी पूरी दुनिया के लिए हैं। तो ये संक्षेप में उनकी जीवनी के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि दलाई लामा जी क्या है, बाकी का आप लोग पढ़ सकते हैं। तो परम पावन दलाई लामा जी ने वैसे बहुत सारे कार्य किए हैं मानव हित के लिए। उनमें से उनके प्रमुख जो 4 कार्य हैं, जो उनकी 4 प्रतिज्ञाएँ हैं, प्रतिबद्धताएँ हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में निकाल के रखी, जो कि सब लोगों को हितकारी हो सके, सबका लाभ हो सके। तो मैं इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ कि दलाई लामा जी के जो मूल संदेश हैं वो क्या हैं, उनको हम लोग समझ सकें, जान सकें। और आप लोग जो ITI के टेक्निकल स्टूडेंट हैं, साइंस को पढ़ने वाले आप लोग हैं, तो साइंस के साथ साथ मॉडर्न जो आजकल की हमारी मॉडर्न साइंस का है और प्राचीन साइंस जो है एंशिएंट विजडम, उसको हम लोग कैसे साथ साथ लेकर के आ सकेंगे, उसको एक एक करके मैं यहाँ पर आपके सामने व्याख्या करूँगा। नेक्स्ट, ये आप क्या देख रहे हैं चित्र में? क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोई बताएगा? ये बड़े फोटो में क्या है, बताइए क्या है? ट्रक। ये ट्रक किसका है, क्या चीज़ का है? इसमें लिखा सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब होता है हम लोग कचरा गाड़ी, जो म्यूनिसिपालिटी की सुबह सुबह गाड़ी आती है ना, वो गाड़ी है। और इसके ऊपर क्या पोस्टर लगा है? पीस ऑफ माइंड। कचरे की गाड़ी पर भी पीस ऑफ माइंड। और ये कहाँ का फोटो है? USA का, न्यूयॉर्क का, अमेरिका का फोटो है। तो इससे क्या दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड, जो हमारा मन है, और ट्रक के अंदर क्या है? क्या है ट्रक के अंदर? अंदाज लगाओ क्या है? कचरा। ट्रक कितना साफ है, ट्रक बहुत साफ है, लेकिन उसके अंदर कचरा जब रख जाता है तो वो उसके अंदर क्या है? गंदगी आ जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों का मन बहुत साफ है, पानी की तरह विशुद्ध साफ, लेकिन जब जैसे जैसे उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, जब ईर्ष्या आ जाती है, एक दूसरे से मनमुटाव आ जाता है, स्वार्थी भावना आ जाती है, तो हमारा भी मन इसी प्रकार से डस्टबिन जैसा हो जाता है। सही बात है कि नहीं? और हम लोग को चाहिए क्या? पीस ऑफ माइंड। यहाँ हम सभी लोग बैठे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? एक प्रश्न पूछूंगा आपसे
कि हम सब लोग क्या चाह रहे हैं? तेज बोलिए, क्या चाह रहे हैं हम लोग? कितने लोग सहमत हैं कि सुख चाह रहे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग चाह रहे हैं कि हम सुख चाह रहे हैं? हाथ उठाइए। शायद सभी, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कहे कि नहीं मुझे दुख चाहिए। दूसरा प्रश्न, कितने दिनों तक खुद सुख चाह रहे हैं? कितने दिनों तक? परमानेंट। तो देखिए कितना हम लोगों के पास एक इच्छा जो है वो सुख की इच्छा है कि हम लोग सुख चाह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सुख को भी लंबे समय तक, जब तक हमारा जीवन है, परमानेंट हम लोग सुख चाह रहे हैं। तो सुख को बर्बाद किसने किया है? किसने बर्बाद किया है? अशांति किसने फैलाई? मनुष्य ने। मनुष्य ने अशांति फैलाई। हम मनुष्यों ने अशांति फैलाई हुई है। हम मनुष्यों ने मन की शांति खराब की है। तसल्ली जो भी है वो हम लोगों ने एक प्रकार से हटाई है। तो इस प्रकार से परम पावन जी का जो विचार है कि किस प्रकार से हम माइंड को ठीक कर सकें, माइंड को ट्रेन कर सकें, तो उनके लिए 4 बातें, उसमें से मैं पहली अब बातें आऊँगा कि परम पावन के जीवन में जो 4 कमिटमेंट्स हैं। पहला क्या है? मानवीय मूल्यों का संवर्धन करना। दूसरा, धार्मिक सद्भाव का संवर्धन करना। तीसरा, तिब्बत की आर्ट एंड कल्चर का संरक्षण। और चौथा, प्राचीन भारतीय विद्या का पुनरुद्धार या फिर उसको विकसित करना। तो मैं अगली स्लाइड में एक एक करके अब जाऊंगा। तो अब आप इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि जब परम पावन जी पहले इस मानव मूल्यों के संवर्धन के लिए बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? हमारे मानव मूल्य क्या हैं? करुणा, मैत्री, और क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? पढ़ के बताइए स्टूडेंट। करुणा, मैत्री, पढ़ के बताइए ना। करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष, आत्मानुशासन जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ाना है। ये मानवीय मूल्य जो हैं, करुणा, कंपैशन, कंपैशन कहीं बाहर से ली जा सकती है क्या? मानव मूल्य, करुणा हुआ, दया हुआ, ये कहीं बाहर से आते हैं क्या? ये सारे के सारे हमारे अंदर हैं। हम सब के अंदर हैं। हमारे अंदर भी करुणा है, सर के भी अंदर है, आपके भी अंदर है, आज जो बच्चा है पैदा हुआ वो सब के अंदर है। लेकिन इसको बर्बाद भी हम लोगों ने किया है। आज करुणा की जगह एंगर है, द्वेष है। हम छोटी छोटी बातों पर लेकर के आपस में झगड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं होती है वो व्यक्ति हमेशा लड़ाकू हो जाता है, लड़ने वाला हो जाता है। तो हमारे अंदर से जो मानव मूल्य है, क्षमा की जो भावना है, सहिष्णुता की जो भावना है, ये सारी की सारी भावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, होती चली जा रही हैं। अगर हम पारंपरिक या ट्रेडिशनल सोच के अनुसार करें, हम धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर बात करें तो हमारा मानव का जो तरीका है वो धीरे धीरे अच्छाइयों से बुराइयों की तरफ चला जाता है। हम लोगों ने बहुत सारी तरक्की की, इतने सारे विकास किए, लेकिन उस विकास को भी अगर हम लोग देखेंगे तो अंतिम में जाकर के कहीं ना कहीं एक विनाश का कारण भी बनते हैं। कल वीडियो आप सभी ने देखा होगा यहाँ उत्तरकाशी का, कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है। ये जो आपदा है वो कहीं तक जिम्मेदार हम लोग हैं। उस जगह पर जहाँ नदी थी, प्राचीन समय में आज से 100 साल 200 साल पहले कोई मकान नहीं होगा। धीरे धीरे काट काट के हमने उस पर नदी में जा कर के घर बना लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो जब हमारी प्रकृति के साथ भी करुणा खत्म हो जाती है तो इस प्रकार की आपदाएं स्वाभाविक है। ये गलत, मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन कहीं तक हम सबका इसमें हाथ है। क्या सर? उसको हम लोगों ने नदी को काट दिया, उनकी ज़मीन को हमने हड़प लिया, इस वजह इतना ज़्यादा दोहन कर दिया कि जिससे कि ये स्थिति आज बनी हुई है। तो ये सारे के सारे जो मानव मूल्य हैं, जो नैतिकता है, नैतिकता का मतलब केवल मनुष्यों के साथ ही नैतिकता नहीं, पर्यावरण के साथ, जानवरों के साथ, जिसके भी साथ, उसके साथ भी हम एथिकल होने की जगह अनएथिकल होते जा रहे हैं, अनैतिक होते चले जा रहे हैं। समाज में आज जो व्यभिचार जो हो रहा है, किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से थोड़ी नहीं हो रहा है।
जो कि नैतिकता हम लोगों ने खो चुके हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है, नैतिकता को हम लोग लगातार भूल रहे हैं, हमारी जो सद्भावना है उसको हम भूल रहे हैं। उसके साथ साथ हम असंतुष्ट बहुत ज़्यादा है। असंतुष्टि होने की वजह से अपने संतोष को पाने के लिए ये सारे के सारे हम लोग अकुशल कर्म करते हैं, इसलिए हमारे मन में ये चीज़ें लगातार आ रही हैं। तो दलाई लामा जी ने सोचा कि इसको क्यों ना हम बढ़ा सकें। इम्परमानेंट यही तो है, कभी भी चलते चलते कुछ हो सकता है लेकिन ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं गया होगा। तो इस तरह की वगैरह बातों को हम लोग देखेंगे कि इन मानव मूल्यों को हमारे अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है, कहीं अलग से नहीं आते। एक ईज चाहिए हमको, एक संतुष्टि चाहिए, खुशी चाहिए। हम सभी जो है एक तरह से पैदा होते हैं। हम सभी लोग माँ बाप से या जो देखा जाए कि माँ के गर्भ में पल करके पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कितनी केयर के साथ साथ रहते हैं। अगर माँ ने हमको करुणा न दी होती, अगर माँ ने हमको कंपेशन न दी होती, तो शायद ये स्थिति में हम लोग नहीं होते। बच्चा जब रोता है, जब पैदा होने के बाद, जब छोटा होता है 3 साल से पहले तक, मान लो वो क्यों रोता है, कोई बता सकेगा? क्यों रोता है छोटा बच्चा, क्यों रोता है? उसको क्या चाहिए है? क्या चाहिए? प्यार चाहिए। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि प्यार चाहिए। उसको इस तरह से लेक्चर थोड़ी नहीं चाहिए कि उसको क्लास में जाना है, ITI आकर सीखना है। उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। जैसे ही माँ उसको गले से लगा लेती है, शांत हो जाता है। और उसको ये भी पता है कि माँ जो है वो हमारा सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है। वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि जो बच्चा बचपन में जितना ज़्यादा माँ के साथ रहता है वो उतना ज़्यादा कारुणिक होता है। आजकल के भाग दौड़ की दुनिया में, बड़े शहरों में देखें तो बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि कब माँ आई, कब पिता आया, कब चला गया। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए करना ही पड़ता है। सुबह माँ चली जाती है तो उसके दूसरी आया के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। शाम तक जब लौट कर आती है तब तक बच्चा सो जाता है। सुबह जब माँ जाती है तब बच्चा उठता है, तब तक फिर एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में हो रहा है। ऐसा बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं प्यार को, कमी को महसूस करता है। ये फैक्ट है। तो इसके लिए दलाई लामा जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा हमको जुनून लव जो है माँ से मिलेगा, उतने हम लोग कारुणिक हो सकते हैं। तो इसके लिए कहीं क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे हमारे मानव मूल्य हमारे समाज से आते हैं, हमारे घर से आते हैं, परिवार से आते हैं। उनमें हमको वृद्धि करने की आवश्यकता है, उनको संवर्धन करने की आवश्यकता है। तो ये पहला, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग वैसे भी लेट हो चुके हैं। तो इस तरह के देखें कि परम पावन जी एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उन्होंने ये अपना कमिटमेंट किया है कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो मानव मूल्य उनको बढ़ाया जा सके, उनको समझा जा सके। दूसरा कमिटमेंट इसी के साथ साथ देखो, इसमें देखो, इसको समझने के लिए प्रतिदिन अपने आप को क्या करना है, याद देखना है। माइंड इज नॉट ए डस्टबिन टू कीप एंगर। हमारा जो मन है, किसके लिए? ये डस्टबिन नहीं है। जैसे मैंने ट्रक दिखाया था कचरा वाला, हमारा जो मन है बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें कचरा डालने के लिए नहीं है। एंड जेलस मतलब गुस्सा, ईर्ष्या इत्यादि चीज़ें डालने के लिए नहीं है। बट इट इज़ द ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव, हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। किसके लिए है? प्रेम को साथ रखने के लिए, याद मतलब मेमोरी, अच्छी मेमोरी को इसमें रखने के लिए है। और इसके साथ साथ क्या है? खुशी को रखने के लिए। तो हमारा माइंड जो है इसके लिए। दूसरे फोटो में देखो, हर दिन अपने आप को याद रखना है, आई एम इंचार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। हमारी खुशी का इंचार्ज कौन है? हमारी खुशी का मालिक कौन है? हमारी खुशी का इंचार्ज कौन है? सर तो नहीं दे सकते हमको खुशी, मैडम भी नहीं दे सकती। मैं अपनी खुशी का स्वयं जिम्मेदार। ना ही बाज़ार से खरीद सकते हैं कि भाई आधा किलो हमको खुशी दे दो, आज जा कर के मैं पी लूँगा, खा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बाज़ार से खुशी मिलेगी क्या? अगर मिल जाती तो सब रईस लोग खुश बैठे होते, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बेचारे दुखी हैं।
आज जितना ज़्यादा अमीर व्यक्ति है उतने उसके ज़्यादा घर में ताले होंगे, उतना भीतर जाके सोता होगा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, क्या क्या लगा रखा होगा, तब जाकर फिर भी डर डर के। शांत रहिए बीच में, ये सब आपके काम आने वाला है। तो ये जो है जितना ज़्यादा हम लोग इतने डरे हुए हैं, कब क्या ना हो जाए, कौन क्या ना चुरा ले जाए, इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग अपने इंचार्ज हैं, हम अपने चित्त के खुद मालिक हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। सुख जो मिलेगा, हम सुख चाहें तो सुख प्राप्त कर सकते हैं, दुख चाहें तो दुख प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। और आई विल नॉट लेट एनीथिंग आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ कंट्रोल मी, मतलब मैं बाहर से किसी को भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। ये सही बात है। आपने बैल, कितने लोगों ने देखा है बैल जो खेती में चलता है, बेचारे के नाक में छेद के और रस्सी बांध देते हैं, उसको ले जाने के बाद देखो कहीं भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो बस में नहीं है, दूसरे के अधीन है। हाथी कितना पावरफुल होता है उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। वो छोटा सा बच्चा चावों को लेकर के उस इतने विशाल का है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर को अपने बस में किए होता है, क्योंकि किसी के कंट्रोल में है। जब उस दिन पता लग जाता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, तो वो पूरे भवन को तोड़ सकता है, इस बिल्डिंग को तोड़ सकता है, वो इतनी क्षमता है। हमारे अंदर भी, हमारे चित्त के अंदर इतनी क्षमता है कि हम लोग चाहें तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। तो हम लोगों को अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को हम सब के अंदर है। जैसे ही पैदा हुए हम लोग के अंदर ये लविंग, काइंडनेस, कंपैशन, हैप्पीनेस, ये सब हमारे अंदर है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम दूसरे के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? गुस्सा के, जेलस के, कंपटीशन के, थोड़ी ज़मीन के लिए, थोड़ी पैसे के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अंत में कुछ लेके नहीं जाना, सब रह जाएगा। हम लोग हाय हाय तौबा तौबा बीच में कर रहे हैं तो सब यहीं छूट जाएगा। अजीब इंसान है हम लोग, अगर देखा जाए तो पूरा एक तरह से इसमें इस जन्म लेने के बाद और झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अंत में जाकर के देखो तो साथ वाला जो होता है परिवार का, वो भी नहीं जाता है। हम लोग देख सकते हैं, ये रियलिटी है मनुष्य की। लेकिन मनुष्य फिर भी इतना जो है प्रयास करता है, इतना गलत व्यवहार करता रहता है जिससे दूसरों को नुकसान होता है। आई एम क्रिएटिंग ए लाइफ दैट फील्स गुड ऑन द इनसाइड एंड इट विल टर्न इनटू द एक्सपीरियंस दैट आर गुड ऑन द आउटसाइड। मतलब ऐसा मैं बनूंगा कि जो बाहर से भी अच्छा हो, बाहर से भी अच्छा बनूंगा, अंदर से भी अच्छा बनूंगा। तो हम सबको इस प्रकार से बनने की है कि अपना जो स्वामित्व है, अपना जो अधिकार है, अपना जो एक खुशी है, वो दूसरे को नहीं देनी है। नेक्स्ट, इसके बाद इसके साथ साथ सकारात्मक भावनाओं को सशक्त बनाएं। एम्पावरिंग जो हमारे जो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस। तो हमारी जो सकारात्मक इमोशंस हैं, हमारे अंदर दो प्रकार के इमोशंस, नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव कौन से? गुस्सा। सकारात्मक कौन से होते हैं? पॉजिटिव कौन से? प्रेम है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना है। तो इसमें मैं स्लाइड के माध्यम से देखो कितना अच्छा संदेश है। कंट्रोल योर इमोशंस और बी कंज्यूम्ड बाय देम। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, नहीं तो जो बुरी भावना है वो आपको बर्बाद कर देगी। अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल करिए, आपके जो एंगर है उसको कंट्रोल करो, नहीं तो एंगर आपको बर्बाद कर देगा। आज जितने भी युद्ध होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एंगर की वजह से, लालच की वजह से, स्वार्थ की वजह से। युद्ध अगर चाहे तो एक दिन में नष्ट हो सकता है, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत इसको लंबा खींचते हैं। जितना ज़्यादा लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा हथियार बिकेंगे, लंबा चलता रहेगा। उनको मानवता से लेना देना नहीं है कि मानवता का क्या हाल हो रहा है, एक इनकम होनी चाहिए। तो इमोशंस उनको किसने कंट्रोल कर रखा है? एंगर ने, स्वार्थ ने, सेल्फिश ने, कि आई वांट टू बी फर्स्ट, मुझे पहला बनना है। इसके साथ साथ दौड़ में, घर परिवार में भी अगर हम लोग देखें कि भाई भाई में भी हम लोग एक प्रकार से कंपटीशन में नकार देते एक दूसरे को कि मेरा यहाँ से रास्ता है, मेरा होना चाहिए, मैं और मेरे की वजह से, स्वार्थ होने की वजह से कुछ भी नहीं। अंत में जा करके क्या होगा? हम लोग को वही ज़मीन छोड़ी नसीब होगी, उसके बाद जला दिए जाएंगे, नदी में बहा दिए जाएंगे, क्या मिलेगा?
कम से कम ऐसे तो जी के जाएं कि जो लोग याद करें। फिर इसके बाद अगला, ये देखो कितना अच्छा एक संदेश इसमें देखो, ट्रू लव रिक्वायर्स फेथ। जो सच्चा प्रेम है वो उसमें क्या है, विश्वास होता है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, और ईमानदारी भी, लॉयल्टी होनी चाहिए। नॉट चॉकलेट फ्लावर्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट। चॉकलेट देने से प्यार नहीं बढ़ता। चॉकलेट हम लोग दे देते ना, वे साथ में आई लव यू बोलते हैं ना, कि लगता है कि प्रेम बढ़ जाएगा, उससे नहीं बढ़ेगा। वो बदले का होता है, बदले का। आपने चॉकलेट दिया तो उसने भी दे दिया, उसमें हम खुश हो जाते हैं, उससे नहीं हो सकता है। क्या होगा, इसके लिए फेथ चाहिए, विश्वास, एक दूसरे के साथ विश्वास चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। आप एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के किसी के प्यार को नहीं खरीद सकते। बहुत एक्सपेंसिव हम लोग गिफ्ट देते हैं, फिर बाद में टूट जाता है। रहना चाहिए था ना, क्यों नहीं रहता है? इससे सिद्ध है कि इससे कभी भी आप पैसे से उससे प्यार नहीं खरीद सकते। प्यार को किससे, विश्वास से, ईमानदारी से, उसके द्वारा खरीद सकते। इसमें दो बुजुर्ग लोग दिखा रहे हैं, देखो इतने बुजुर्ग होने के बाद भी एक दूसरे को लेकर के जा रहे हैं। ट्रस्ट है, फेथ है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट, माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हम अंतिम समय में जाकर के भी एक दूसरे के साथ प्रेम से खुशी खुशी रह सकते हैं। ये हमको आज चाहिए। आज बहुत होता है कि जो ट्रस्ट न होने के साथ, प्रेम न होने के साथ कितने हमारे माँ बाप लोगों को बुजुर्ग निवास में रहना पड़ रहा है। जिस माँ बाप ने, माँ ने हमको पैदा किया, उसको अंतिम में जाकर के ओल्ड होम में रहना पड़ रहा है बेचारे को। ये क्यों? स्वार्थ की वजह से आया हुआ है। तो ये जो मानव मूल्य है, नैतिकता, इसमें कमी आ रही है, इसको हमको ठीक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये जो अंतर धार्मिक, दलाई लामा जी कहते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से जो सभी धर्म हैं उनके बीच में एक समभाव लेकर के आ सकूँ। हर धर्म में खूबसूरती है, और खूबसूरती कहते हैं ना कि खूबसूरती आँख में होती है, बाहर नहीं, कि आप कैसे देखते हो उसको। दलाई लामा जी कहते हैं कि इस दुनिया में लगभग 8 अरब के आसपास लोग हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, खुशी को प्राप्त करने के लिए अपना तरीका है। तो उसको होने के लिए बहुधर्म होने आवश्यक है, बहुत सारे धर्म होने चाहिए। वन रिलीजन वन नेशन का कंसेप्ट जो है वो ठीक नहीं होता है। सारे के सारे लोगों की अपनी अपनी एक चाहत होती है। अगर सभी लोगों से कहा जाए कि आप दाल चावल खाते रहो 30 दिन या 365 दिन, तो शायद हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोगों को भी अलग अलग टेस्ट है। आज रोटी खानी है तो कल चावल खाना है, कल राजमा खाना है। हर रोज़ क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमको टेस्ट चाहिए, फिजिकल टेस्ट चाहिए। उसी प्रकार से मेंटल टेस्ट के लिए मेंटल फूड के रूप में धर्म होते हैं। तो ये धर्म हमें समय समय पर अगर हमारे अंदर अनैतिकता आती है, उनको उजागर करते हैं, उसको हमको सिखाते हैं। तो धर्मों में जो कि कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो परम पावन जी का प्रयास है कि सभी विश्व के जो 8-9 रिलीजन हैं वो साथ साथ आएँ, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे का ध्यान रखें, जिससे कि मानव जगत का कल्याण हो सकता है। आज धर्म के नाम पर हम लोग देख रहे हैं कि मेरा धर्म ठीक है, उसका धर्म खराब है, मैं ये मानता हूँ, तुम ये मानते हो, ये कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जब छोटे होते थे बचपन में, आई थिंक 5-6 साल तक के, या फिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो एक दूसरे के टिफ़िन में खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे का चप्पल भी पहन लेते थे। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही कहते हैं, अरे ये शर्मा जी का लड़का है, ये पठान का है, ये तिब्बतन है, ये फलाना है, इसके साथ नहीं जाना है। हमने अंतर किया। किसने किया ये अंतर? बच्चे ने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया। फिर हम लोगों ने समाज में आकर के धीरे धीरे अंतर किया। थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये अमीर का है, उसके कपड़े हैं अच्छे पहनता है, उसके साथ मत जाओ, वो गंदे कपड़ा पहनता है, उसके पास मत जाओ, हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, तुम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो। ये किसने बनाया? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें अंतर करने की आवश्यकता नहीं। सभी लोगों को जिस प्रकार से हम लोग बचपन में हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, पढ़ते थे, तो वो भी सभी धर्म आकर के सद्भाव बनाए। सब में अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को एक दूसरे के साथ हमें लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए।
तीसरा कमिटमेंट जो प्रमुख रूप से तिब्बती लोगों के लिए या तिब्बत देश के लिए तिब्बती भाषा, संस्कृति, पर्यावरण का संरक्षण। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि मैं एक तिब्बती व्यक्ति हूँ, तो हर एक नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो तिब्बत की अभी जो हालात 1959 के बाद जो हुए, हम सभी जानते हैं कि इसके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, सदियों से रहा है। हमारे गुरु लोग वहाँ जाते थे, वहाँ से लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। इवन तिब्बत की जो स्क्रिप्ट है वो भी भारतीय भाषा से बनी हुई है। जा सातवीं शताब्दी में ये स्क्रिप्ट बनी, अनुवाद वहाँ बहुत सारे हुए, धर्म के काम हुए, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत माना जाता है। विश्व की छत है। जो हम लोग अपने ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं वो तिब्बत से बह करके आती है, जिसके किनारे रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन आज धीरे धीरे वही पानी दूषित होता चला जा रहा है। जो एटॉमिक कचरा है, प्लास्टिक है, उस नदी में जाकर के डंप किया जाता है, जो कि आगे जाके हमारे अरुणाचल से लेकर के असम, बांग्लादेश इत्यादि देशों में लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किल हालात हो रहे हैं। और आए समय में ऐसा होगा कि कहीं डैम इत्यादि जो बन रहे हैं बहुत तेज़ी से, वो आगे भारत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। और नेक्स्ट आप बताइए, इस फोटो को कितने लोग पहचानते हैं? ये कहाँ का है? कहीं देखा हुआ है क्या? ये फोटो नालंदा का है। नालंदा 5वीं शताब्दी से लेकर के यहाँ 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 12वीं शताब्दी तक ये चला था। आपके दशमलव और जीरो देने वाले आर्यभट्ट नालंदा के स्टूडेंट थे। और नालंदा में केवल बौद्ध दर्शन का अध्ययन होता था, ऐसा नहीं था। नालंदा में ये हमारे जो कि मैथमेटिक का अध्ययन होता था, ज्योतिष का अध्ययन होता था, मेडिसिन का अध्ययन होता था। ये सारे अध्ययन का केंद्र था। और विश्व के तमाम लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। विश्व का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि जो प्राचीन विद्या है, जो भारत में अलग अलग विद्याएं हुई हैं, जो 6 विद्याएं हुई हैं, उन सब में इतने अच्छे सार गर्भित महत्व की चीज़ें हैं जो लोगों का हित कर सकते हैं। और उसमें से खास करके जो मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान की क्षमता केवल भारतीय दर्शन में पाया जा सकता है। हमारे ग्रंथों में इन चीज़ें हैं, इनको निकाल करके एक ऐसा कंपाइल किया जाए जिससे कि सभी लोगों का हित हो सके। इसमें धर्म परंपरा की कोई बात नहीं। प्राचीन परंपरा जैसे ध्यान की परंपरा, अहिंसा की परंपरा, ये प्राचीन भारत में हुआ करती थी, जिसने विश्व को संदेश दिया है। भारत को विश्वगुरु क्यों कहा गया? ऐसे नहीं कहा गया कि कोई और बातें थी, इसी वजह से करुणा मैत्री का संदेश दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। भारत की अहिंसा को, सिद्धांत को लेकर कितने लोगों ने अपनी आज़ादी में उपयोग किया उसको। नेल्सन मंडेला जी ने, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भारत के अहिंसा को, सिद्धांत को पालन करते हुए अपने देश में रिवोल्यूशन किया। इस प्रकार के बहुत सारे, इवन दलाई लामा जी भी भारत की इस परंपरा को लेकर के अपने देश में उसकी स्वतंत्रता के लिए वही तो प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मनोविज्ञान की व्यवस्था है कि किस प्रकार से हमारा मन कलुषित होता है, किस प्रकार से मन हमारा जो गंदा हो जाता है उसको हम ठीक कर सकें, तो इसलिए इसको पढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जो इमोशंस हैं उसको समझें। तो 2 प्रकार के हाइजीन जो हम लोग का भी विकास जो किए हैं, बाहरी विकास, उससे हम फिजिकल कंफर्ट कर सकते हैं, लेकिन मानसिक कंफर्ट को उतना हम लोग शायद नहीं जा पा रहे हैं जितने भी आप तरक्की कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ संस्थान में आप लोग जो ITI भी सीख रहे हैं, तो कोई स्किल पाने के लिए कर रहे हैं कि हम स्किल पाएंगे, इससे नौकरी हमको मिलेगी, नौकरी से हम अपना अच्छा घर बना लेंगे, अपने जीवन को अच्छा चला लेंगे। लेकिन इससे कहो कि मन की शांति मिल जाए, टेम्परेरी थोड़ी मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, जैसा कि अभी सब लोग सहमत हुए थे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगी। वो सिर्फ प्राचीन दर्शन से, प्राचीन विज्ञान से। तो आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि जिस दिन प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान साथ में मिलेगी, वो युग बहुत सुनहरा होगा। तो प्राचीन विज्ञान मतलब मन की विज्ञान। तो मन की विज्ञान और अभी जो हमारी फिजिकल विज्ञान है, ये दोनों जब साथ लेंगे, बाहर भी हम लोग डेवलप्ड होंगे, अंदर तरीके से हम लोग डेवलप्ड होंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अभी तो हम लोग आधे डेवलप जैसे हैं, केवल बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से तो नहीं है। आंतरिक रूप से हम लोगों में कितना एंगर है, कितना ज़्यादा क्रोध है। और प्राचीन भारतीय विद्या ऐसी विद्या है जो कि पूरे विश्व को एक संदेश दे सकती है,
विश्व को सिखा सकती है, जो कि सदियों से सिखाया है। तो ये क्षमता भारत में ही है। मॉडर्न साइंस के साथ प्राचीन जो साइंस है उसको साथ लेकर के चला जा सकता है। तो ये दलाई लामा जी के मैं संक्षेप में आपको 4 कमिटमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखें कि ये जो परम पावन दलाई लामा जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जैसे आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो कैसे खुश हम रह सकते हैं, जो कि बियॉन्ड रिलीजन, कि धर्म से भी परे चीज़ें कुछ होती हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोगों के जीवन के लिए लाभदायक हैं, केवल धर्म से ही सबका हित हो सके ऐसा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो किताबें हैं तो इनको आपका भी मौका लगे तो पढ़िएगा, ये कोई विश्व प्रसिद्ध ये पुस्तक है। नेक्स्ट, अब मैं आपके ऊपर बताना चाहूँगा सी लर्निंग क्या है। सोशल, इमोशनल, इथिकल लर्निंग, वहाँ भी आपने देखा होगा। तो हालांकि चारों के चारे कमिटमेंट्स में से ये जो 3 बातें हैं वो भी सम्मिलित हो जाती हैं कि हमारे सामाजिक किस प्रकार से हमारा हो, हमारे इमोशनली हम लोग भावनात्मक तरीके से कैसे सुदृढ़ हों, और हम नैतिकता के आधार पर कैसे जी सकें। तो परम पावन जी का जो कमिटमेंट्स पहला और चौथा, इन दोनों को कमिटमेंट को मिला करके अगर देखेंगे तो जा कर के सी लर्निंग प्रोग्राम हुआ। और इसका शुभारंभ 2015 में परम पावन जी के कार्यालय ने और एमोरी विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक विचार किया कि ऐसा कोई करिकुलम बनाया जाए जो बियॉन्ड क्लास से हो, जो ट्रेडिशनल शिक्षा से हट करके हो। अभी हम लोग जो अध्ययन करते हैं एक टेक्निकल या स्कूल में जा रहे हैं, वो एक हमारी ट्रेडिशनल है। इससे हटके भी कोई शिक्षा ऐसी हो जिससे कि कोई किताब का यहाँ काम ना हो, एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ना हो, जिससे कि इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए अमेरिका के जो एमोरी यूनिवर्सिटी, हमारे दलाई लामा जी के कार्यालय ने कार्य किया, मिलकर के कार्य किया, और सन 2019 में ग्लोबली रूप से दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में संक्षेप में ये परिचय। नेक्स्ट, इसका आखिर को ये जो क्षेत्र क्या है, इसको कार्य करने के 3 क्षेत्र हैं, 3 डोमेन्स बांटे गए हैं। पहला है व्यक्तिगत, कि व्यक्तिगत हम कैसे ठीक हो सकें पर्सनल लेवल पर, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस की आवश्यकता, दूसरा इमोशनल अवेयरनेस, तीसरा जो है थोड़ा हम लोग सावधानी बरतें, अलर्ट रहें मतलब हमारे माइंड में किस प्रकार से हमारे जो कि बुरी भावना ना आ पाए उसके प्रति हम लोग अलर्ट रहना सीखें। दूसरी जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनती है, समाज में रहने के साथ साथ एक दूसरे का साथ हम लोग सहानुभूति रखें, दूसरा के संपर्क रखें, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती का भावना रखें, लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे बने। और जो सिस्टम है जिसका पूरा का पूरा सिस्टम वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, हम सब एक दूसरे से मिले हुए आश्रित हैं। कैसे समझ सकें, अगर आप लोग न होते, आप लोग न बुलाए होते तो मैं यहाँ शायद लेक्चर देने नहीं आता। मैं आप पर डिपेंड हूँ, मैं स्पीकर के रूप में ना आते तो आप लोग भी किसको सुनते। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है, हम हटके नहीं जा सकते। बेटा माँ पे डिपेंड है, माँ बेटे पे डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है, हर चीज़ दुनिया में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो इस प्रकार से हम लोगों को आश्रित होने की वजह से हम लोग विश्व के ऊपर आश्रित हैं, पूरी दुनिया पर आश्रित हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, सार्वभौमिक जिम्मेदारी बनती है, विश्व के लिए जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए हम क्या कार्य कर सकें। नेक्स्ट, इस प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट है वो 79 कंट्रीज़ में अभी तक हुआ है। 2019 से लेकर के 6 वर्षों में 79 कंट्री में इसको लागू किया गया, क्लासरूम्स में लागू किया गया, पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया गया कि किस प्रकार से हम इंटरनली मजबूत हो सकें, सुदृढ़ हो सकें, इमोशनली हम कैसे मजबूत हो सकें। और इसके साथ साथ 20 करोड़ से अधिक, ये डाटा 1 साल पुराना है, 20 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएँ जुड़े हैं, हम जैसे लोग जो स्टूडेंट हैं। इस प्रकार से 20 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में, और 1,10,000 स्कूलों ने इसको स्वीकार किया है। इन स्कूलों में स्वीकार करने में सबसे ज़्यादा इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राजस्थान में बहुत सारे स्कूल्स हैं, अरुणाचल में 2 साल पहले मैं खुद वहाँ गवर्नमेंट के माध्यम से लॉन्च किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, अरुणाचल ने उसको लागू किया, धर्मशाला में पिछली बार धर्मशाला कॉलेज ने उसको लागू किया। तो इस प्रकार की ये जो अच्छी बातें हैं
कि सारे के सारे लागू कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्तर पर भी इसको बड़े रूप में कार्य हो रहा है और इनके अनुवाद जो है अलग अलग दुनिया की 25 भाषाओं में ये कोर्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ 5 लाख से अधिक टीचर्स हैं, ट्रेनर्स, जिनको विधिवत तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। उनके जो है एक प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि क्या आपको पढ़ाना है, किस तरह से कार्य करना है। तो ये सी लर्निंग का, सोशल, एथिकल, इमोशनल लर्निंग का एक खाका है। ये एक प्रकार से संक्षेप में है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगला, आखिर को इस सी लर्निंग का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है? तो दलाई लामा जी कहते हैं कि दिल और दिमाग को प्रशिक्षित करना है। हम कंपैशनेट बनेंगे और इसके साथ साथ हमारा जो इंटेलिजेंस है अगर वो बढ़ेगा, अच्छे तरह से बढ़ेगा, अच्छे रास्ते में बढ़ेगा, तो हम निश्चित रूप से इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करके जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी को अगर हम देखें तो इसमें कितने ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। दलाई लामा जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी जो है युद्ध की शताब्दी थी। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, उसके साथ साथ वियतनाम का, दुनिया भर के युद्ध हुए, जब से जो कि फिर उसके बाद धीरे धीरे ये युद्ध खत्म हुए। आज भी हम लोग युद्ध से कहीं दूर हैं ऐसा नहीं है, आज भी युद्ध चल रहे हैं इस दुनिया में। 21वीं शताब्दी में भी कितना रक्त बहा है। ये सारे के सारे इसलिए हुआ कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम भूल गए। मानवता के बीच में जो गैप बना हुआ है, मैं और मेरे की वजह से आ गए हैं। तो इसलिए जब तक हमारा दिल और दिमाग सुदृढ़ नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक हम लोग दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो बोतल में पानी लेके जाना पड़ता है। आप जैसे जब पहले जाते होंगे, इससे 20-30 साल पहले, तो कहीं भी पानी पी लेते होंगे। मुझे भी याद है गांव में कहीं भी हम पानी पी लेते थे, लेकिन आज गांव में भी कहीं से भी पानी पीने लायक नहीं रहा है। या तो आप खरीद के ले जाओ या तो फिर आप प्यासे हो। आने वाले 50 साल में क्या हालत होगी, हम लोग क्या छोड़ के जाने वाले हैं? ये जो जनरेशन, अभी जो आप यंग स्टूडेंट हैं, आने वाले 50 साल की कल्पना करके देखिए क्या स्थिति होगी। ऐसा समय भी आएगा कि एक दिन हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके चलेंगे। इतने स्वार्थी हो गए हम लोग, यूजर से कंज्यूमर बन गए, यूजर से कंज्यूमर, उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता बन गए। प्रकृति के पास सबके लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त होता था, सब लोग उस पर रह सकते थे, लेकिन हमने उसका दोहन कर लिया। कंज्यूम का मतलब है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। इस पंखे का हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। कंज्यूम जब हो जाएगा, जब इसको उखाड़ के ले जाएंगे घर पे, तो हमने कंज्यूम कर लिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो ये यूज करने के लिए आपने यूज किया, इस संस्थान में आने वाले 50-100 साल में लोग इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हमने उपभोग कर लिया, उपभोग करने की वजह से इसको नष्ट कर दिया। ये हम लोग कर रहे हैं, इस पृथ्वी का, इस विश्व का हम लोग उपभोग कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं कैसी बातें करते कि हम चांद पे रहेंगे जा कर के, अरे दूसरी जगह पे रहेंगे जाकर, वहाँ भी यही कचरा करेंगे जाकर, करेंगे क्या जाके? तो जो साफ़ सुथरे हैं उनको तो रहने दें। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। ये आप सभी का धन्यवाद। अंतिम में परम पावन दलाई लामा जी दीर्घ आयु को प्राप्त हो सकें, हम सब भारतीय होने के नाते हम सभी की तरफ से उनके लिए प्रार्थना है कि वो मानव जगत के लिए हित करते रहें, उनका कल्याण करते रहें। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से सुना, थैंक यू। और अंत में मैं चाहूँगा 1-2 प्रश्न हों किसी के इस विषय से संबंधित, तो आप लोग पूछिए, किसी स्टूडेंट के पास हों, प्रश्न पूछना सीखिए। स्टूडेंट लोग क्लास में प्रश्न पूछना सीखिए आप लोग। किसी के पास कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ, अभी आपने कैलाश चंद्र बुद्धा जी को सुना, तो कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, जो अभी तक आपने पवन पावन दलाई लामा जी के विचार सुने, उनके संदेश सुने, उनसे संबंधित हो, या आपके मन में कोई भी विचार आता हो, कोई भी विचार, कोई आपके मन में उलझन हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उसके विषय में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो आपके मन में कोई दुविधा हो या कोई
जो इन्होंने पावन विचार रखे दलाई लामा जी के, उनकी सेइंग्स रखी, उससे संबंधित हो या आपके मन में कुछ ऐसा उठता हो तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच खड़े हो सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। कोई प्रश्न है? सभी कुछ समझ में आ गया तो जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। अगर आप समझ गए हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कैलाश चंद्र बुद्धा जी का। एक चंद लाइनें सर आपके लिए। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। तो बहुत ही सुंदर और पावन संदेश आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आज समय निकाला। मैं समस्त ITI स्टाफ की तरफ से और समस्त बच्चों की तरफ से आप सबका इस प्रांगण में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पवन पावन दलाई लामा जी की जो विचारधारा, जो पावन संदेश आपने हम सबको दिया, उसके लिए हम सब रेडी हैं। और जैसा आपने बताया कि 6 जुलाई को उनका 90वां जन्म दिवस था, तो हम भी ITI की तरफ से उनके मंगल कामना की, उनके शुभेच्छा की कामना करते हैं। और सदा उनका आशीर्वाद हम सभी पे, आप सभी पे बना रहे और ये विश्व शांति में रहे और आगे इसी तरह से प्रगति करता रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं पुनः आपका ITI में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।